یہ کہانی ایک انوکھی بستی کی ہے جہاں صرف بونے رہتے تھے۔ ان بونوں کی ایک عجیب بات یہ تھی کہ ان میں کوئی بھی کبھی اس بستی سے باہر نہیں گیا تھا۔ نہ کسی نے باہر کی دنیا کو دیکھا، نہ اس کے بارے میں کچھ جانتا تھا۔ یہ بستی پہاڑوں کے درمیان ایک سرسبز وادی میں آباد تھی۔ بستی کے بزرگوں نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ بستی سے باہر جانا منع ہے کیونکہ باہر خطرہ ہے، لیکن وہ خطرہ کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ بس اتنا پتا تھا کہ جو بستی سے باہر گیا وہ کبھی بھی واپس نہیں آیا۔ اس بستی میں ایک پرانا خوفناک گھر تھا۔ یہ گھر بستی کے کنارے پر کھڑا تھا، قدیم اور سنسان۔ آدھی چھت ٹوٹی ہوئی تھی اور جب بھی ہوا چلتی تو دروازہ خود بہت ہلنے لگتا، جیسے کوئی اندر چھپا ہو۔ بستی کے سارے بونے اس گھر سے خوف کھاتے تھے اور کوئی بھی اس کے قریب جانے کی ہمت نہ کرتا تھا۔ بچپن سے زال اور مہرو نے یہ کہانیاں سن رکھی تھیں کہ جو بھی اس گھر کے اندر گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ اس گھر کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ گھر کسی جادوگر کا تھا جو آج بھی زندہ ہے، اور کچھ کا ماننا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی انسان پتھر بن جاتا ہے۔ ایک دن زال اور مہرو نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خوف کی حقیقت کو معلوم کریں گے۔ وہ دونوں بہادر تھے اور یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا واقعی یہ گھر خطرناک ہے یا یہ صرف کہانیاں ہیں۔ زانگ نے کہا، اگر کوئی پہلے کبھی واپس نہیں آیا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اندر کیا ہے؟ مہرو نے کہا، شاید لوگ صرف ڈر کی وجہ سے اندر نہیں جاتے، اصل میں اندر کچھ بھی نہ ہو۔ آخرکار دونوں نے فیصلہ کر لیا وہ اس خوفناک گھر میں داخل ہوں گے۔ اگلے دن زال اور مہرو اس گھر کے قریب پہنچے۔ ہوا تیز چلنے لگی، دروازہ چرچرانے لگا جیسے کوئی انہیں روکنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے دروازہ کھول دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی انہیں ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا محسوس ہوا۔ کمرے گرد سے بھرے ہوئے تھے، پرانی لکڑی کی الماریاں ٹوٹی پھوٹی تھیں اور چھت سے مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے، لیکن سب سے حیران کن چیز ایک بڑا آئینہ تھا جو کمرے کے بیچوں بیچ رکھا ہوا تھا۔ زال نے آہستہ سے آئینے کی طرف قدم بڑھایا۔ جیسے ہی اس نے آئینے میں دیکھا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کانپنے لگی۔ زال نے کانپتی آواز میں کہا، مہرو، کیا تم یہ دیکھ رہی ہو؟ مہرو نے آئینے میں جھانکا اور اچانک آئینے کے اندر ایک عجیب سایہ ابھرنے لگا۔ یہ سایہ کسی اور کا نہیں، خود زال اور مہرو کا تھا، مگر وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ بونے نہ ہوں بلکہ عام انسان ہوں۔ یہ کیا ہے؟ زال کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ اچانک ہوا کی ایک زوردار لہر نے دونوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ نہیں نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ زال چلایا۔ پھر اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ زال اور مہرو خوف کے مارے بھاگے اور گھر سے باہر آ گئے۔ اگلے دن زال اور مہرو کی رات بے چینی میں گزری۔ وہ دونوں بستر پر لیٹے، مگر آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ ان کے ذہن میں وہ خوفناک لمحہ گھوم رہا تھا۔ ہم نے سچ میں کچھ عجیب دیکھا تھا، مہرو نے دھیمی آواز میں کہا۔ زال نے گہری سانس لی۔ ہاں، اور ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ آخر وہ سب کیا تھا۔ اگلے دن ان دونوں نے اسی گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، مگر ان کے اندر کا تجسس انہیں روکنے نہیں دے رہا تھا۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو اندر کا منظر پہلے جیسا ہی تھا۔ گھر سے بھرے ہوئے کمرے، ٹوٹی پھوٹی الماریاں اور مکڑی کے جالے۔ جادوئی آئینہ بھی اپنی جگہ پر موجود تھا۔ زال نے آئینے میں جیسے ہی دیکھا، اسے اچانک یوں لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا ہو۔ منظر دھندلا ہونے لگا اور اس کے کانوں میں ایک سرگوشی گونجی۔ تمہاری حقیقت اس بستی سے کہیں آگے ہے، تم وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو۔ زال نے جلدی سے مہرو کو آواز دی، یہ آئینہ عام نہیں ہے، یہ کچھ دکھا رہا ہے، کچھ بتا رہا ہے۔ مہرو نے بھی آئینے میں جھانکا اور اچانک دونوں نے خود کو ایک مختلف دنیا میں کھڑے پایا۔ وہ ایک وسیع میدان میں تھے جہاں بونے نہیں بلکہ عام انسان رہ رہے تھے۔ وہ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا یہ ہمارا مستقبل ہے یا ہمارا ماضی؟ مہرو نے کانپتی آواز سے پوچھا۔ زال بولی، یہی وہ راز ہے جسے ہم نے جاننا ہے۔ زال اور مہرو حیرت میں ڈوبے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اس اجنبی دنیا میں کیسے پہنچے، یہی سوال ان کے دماغ میں چل رہا تھا۔
अचानक इनके इर्द गिर्द एक रोशनी चमकी और एक पुरस्कार शख्सियत नमूदार हुई। यह एक बुजुर्ग शख्स था जिसकी दाढ़ी सफेद और आंखें गहरी नीली थीं। इसने एक लंबा चोहा पहन रखा था और इसके हाथ में एक सुनहरी छड़ी थी। तुम दोनों यहाँ कैसे पहुंचे? इसने संजीदा लहजे में पूछा। जाल और मेहरू ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर जाल ने हिम्मत करके जवाब दिया, हम बस्ती के किनारे वाले पुराने घर में गए थे। वहां हमें एक जादुई आईना मिला और जैसे ही हमने इसमें झांका हम यहाँ आ गए। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा यहाँ आना इत्तफाकी नहीं था। यह आईना तुम्हारी हकीकत से पर्दा उठाने के लिए बनाया गया था। मेहरू ने हैरानी से पूछा, हमारी हकीकत? इसका क्या मतलब है? बुजुर्ग एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर बोला, तुम लोग हकीकत में बोने नहीं हो। दर हकीकत एक कदीम जादू की वजह से इस शक्ल में कैद हो। सदियों पहले तुम्हारी बस्ती के लोगों पर एक ताकतवर जादूगर ने जादू कर दिया था। उसने तुम सबको बोना बना दिया और तुम्हारी याददाश्तें मिटा दी ताकि तुम कभी अपनी असल हकीकत को ना जान सको। जाल ने हैरानगी से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों किया गया? बुजुर्ग ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे आबा व अजदाद इस सरजमीन के असल वारिस थे। जादूगर ने उन्हें कमजोर बनाकर इस बस्ती में कैद कर दिया ताकि वो कभी अपनी ताकत और वरासत वापस ना ले सकें। मगर अब तुम दोनों ने आईने का राज खोलकर अपनी किस्मत बदलने की राह हमवार कर दी है। मेहरू ने गहरी सांस ली और बोला, तो क्या इस जादू को तोड़ने का कोई तरीका है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन ये आसान नहीं होगा। तुम्हें जादूगर के कदीम किले की तक जाना होगा और वहां वो जादुई किताब हासिल करनी होगी जिसमें तुम्हारी बस्ती पर किए गए जादू का तोड़ लिखा है। मगर याद रखो, जादूगर आज भी जिंदा है और वो किसी भी कीमत पर तुम्हें कामयाब नहीं होने देगा। जाल ने मेरी की तरफ देखा और बोला, अगर ये वाकई सच है तो हमें अपनी बस्ती को इस जादू से आजाद कराना होगा। मेरू बुजुर्ग की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, हम तैयार हैं। हमें बताएं कि आगे क्या करना होगा। बुजुर्ग ने एक नक्शा निकालकर इनके हवाले किया। यह नक्शा तुम्हें किले तक पहुंचाने का रास्ता दिखाएगा, मगर याद रखो, रास्ता खतरनाक होगा और जादूगर की चेले तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तुम बहादुरी, अक्ल और एक दूसरे पर भरोसा रखोगे तो कामयाब हो सकते हो। जब बुजुर्ग ने जाल और मेहरू को नक्शा दिया तो इसके साथ ही इसने उन्हें 2 अंगूठियां भी दी। वो अंगूठियां सादा नजर आती थी, मगर बुजुर्ग ने सख्ती से ताकीद की, ये अंगूठियां बहुत खास हैं, लेकिन किसी को इनके बारे में मत बताना, ये तुम्हारी हिफाजत करेंगी। जब तुम इनको रगड़ोगे तो तुम गायब हो जाओगे। कोई तुम्हें देख नहीं सकेगा, कोई तुम्हें पकड़ नहीं सकेगा। मगर याद रखना, इस ताकत एहतियात से इस्तेमाल करना, ये हमेशा के लिए नहीं चलेगी। यह कहते ही बुजुर्ग ने हाथ से एक हवा का झोंका जाल और मेहरू की तरफ फेंका और अचानक दोनों वापस इसी पुराने घर पहुंच गए। हैरत की बात यह थी कि इनके हाथ में वो अंगूठियां भी थीं और वही नक्शा भी था जो बुजुर्ग ने दिया था। वो दोनों फौरन बस्ती वापस पहुंचे और सब गांव वालों को हकीकत बतलाने लगे, मगर किसी ने इनकी बातों पर यकीन ना किया। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ ने उन्हें पागल कहा और कुछ ने इनकी कहानी को महज एक ख्वाब करार दे दिया। तभी बस्ती के एक मुहम्मर बोने ने कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो चलो हम सब जाकर इस आईने को देखते हैं। अगर वो जादुई है तो हकीकत सामने आ जाएगी। गांव के तमाम बोने जाल और मेहरू के साथ इस पुराने घर की तरफ चल पड़े। जब वहां पहुंचे तो जाल और मेहरू की हैरानगी की इंतहा न रही, क्योंकि वो आईना वहां मौजूद नहीं था। बस्ती के तमाम बोने हैरानी और मायूसी के आलम में वापस चले गए। जाल और मेहरू एक दूसरे को देख रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? मेहरू ने मायूसी से कहा, आईना कहाँ गया? और अगर कोई इसे चुरा कर ले गया तो क्यों? जाल ने गहरी सांस ली और बोला, हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें जादूगर के किले तक पहुंचना होगा। उन्होंने बस्ती के तमाम बोनों को इकट्ठा किया और उन्हें सारी तफसील बताई, मगर अब कोई इनकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। एक बोने ने कहा, तुम दोनों ने कोई ख्वाब देखा होगा।
दूसरा बोला, अगर तुम जादूगर के किले जाना चाहते हो तो शौक से जाओ, मगर हम इस दीवानगी में तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। लेकिन तब ही वही बुजुर्ग बोना आगे बढ़ा और बोला, अगर ये दोनों सच कह रहे हैं तो हमें कम से कम इनकी मदद करनी चाहिए। ये सुनकर जाल और मेहरू ने अपने सफर की तैयारियां शुरू कर दी। इसके बाद वो नक्शे के मुताबिक जादूगर के किले की तरफ रवाना हो गए। इनका पहला पड़ाव एक घना जंगल था। जंगल की पुरअसरार खामोशी उन्हें खौफजदा कर रही थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक चीता नमूदार हुआ। जाल और मेहरू की सांसें रुक गईं। चीता धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो हमला करने के लिए लपका, जाल और मेहरू को फौरन अंगूठियों की याद आई। जल्दी से अंगूठियां रगड़ता ही वो दोनों गायब हो गए। हैरान चीता कुछ देर इधर उधर देखता रहा, फिर वापस चला गया। जब वो कुछ आगे बढ़े तो उन्हें भूख महसूस होने लगी। वो एक दरख्त के नीचे बैठकर खाने ही लगे थे कि अचानक एक बंदर छलांग मारकर इनके करीब आया और इनका खाना छीन कर भाग गया। जवाल और मेहरू हैरत से इसे देखते रह गए। मेहरू बोला, ये क्या हो रहा है? पहले चीता और अब बंदर। जाल ने कहा, हमें मुख्तात रहना होगा, यह जगह आन नहीं लग रही। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक नहर नजर आई। पानी देखकर इनकी प्यास शिद्दत अख्तियार कर गई। जैसे ही वो पानी पीने लगे, उन्होंने एक हिरन को भी पानी पीते हुए देखा। जाल के जहन में एक ख्याल आया। इसने मेहरू को इशारा किया और दोनों ने फौरन अपनी अंगूठियां रगड़ी। दोनों नजरों से ओझल हो गए। हिरन के करीब पहुंच गए और इसकी पीठ पर बैठ गए। हिरन खौफजदा होकर भागने लगा और यूं जाल और मेहरू का मीलों का सफर लम्हों में तय होने लगा। हिरन इन दोनों को जंगल के किनारे तक ले आया, जहां से आगे पहाड़ी सिलसिला शुरू हो रहा था। यह पहाड़ी सिलसिला बेहद खतरनाक और दुश्वार गुजार था। उन्होंने हिम्मत बांधी और चढ़ाई शुरू कर दी। जैसे ही वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, अचानक आसमान से काले परिंदों का एक होल इनकी तरफ बढ़ने लगा। वो शिकारी परिंदे थे जो उन्हें देखकर हमला करने के तैयार थे। जाल और मेहरू ने घबराकर एक दूसरे की तरफ देखा, फिर जल्दी से अंगूठियां रगड़ी और फिर दोबारा से नजरों से ओझल हो गए और परिंदे उन्हें तलाश करते रहे। कुछ देर फजा में चक्कर काटते रहे और फिर वापस हो गए। जैसे ही जाल और मेहरू पहाड़ से नीचे उतरने लगे, उन्हें दूर एक पुरानी हस्ता हाल इमारत दिखाई दी। यही वो जगह थी जो नक्शे में जादूगर के किले के तौर पर निशानज़दा थी। दोनों आहिस्ता आहिस्ता किले की तरफ बढ़ने लगे। जाल और मेहरू जादूगर के किले के करीब पहुंच चुके थे, मगर जैसे ही वो किले के दरवाजे के करीब आए, एक जंजीरों में जकड़ा हुआ शख्स नजर आया। जाल और मेहरू ने अपनी अंगूठियां रगड़ी, लेकिन वो गायब नहीं हो सके। जादूगर के किले के करीब इनका असर खत्म हो चुका था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उस शख्स ने पूछा। जाल ने जवाब दिया, हम जादूगर के खिलाफ हैं। हमें इस जादुई किताब की जरूरत है जो हमारी बस्ती के जादू को तोड़ सकती है। वो कैदी मुस्कुरा कर बोला, मैं भी कभी तुम्हारी तरह आजाद था, बहादुर था, मगर जादूगर ने मुझे कैद कर लिया। मेरा नाम ईजन है और मैं इस किले के राज जानता हूँ। अगर तुम मुझे आजाद करो तो मैं तुम्हें अंदर ले जा सकता हूँ। मेहरू और जाल ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर जाल ने आगे बढ़कर ईजन की बेड़ियां खोल दी। जैसे ही बेड़ियां खुली, ईजन ने गहरी सांस ली और अपने हाथों को सहलाया। इनकी आंखों में शुक्रगुजारी की झलक थी। चलो, वक्त कम है, ईजन ने आहिस्ता से कहा और तेजी से एक खुफिया रास्ते की तरफ बढ़ा। मेहरू और जाल ने भी इसका पीछा किया। तीनों पहाड़ के दामन में बने खुफिया सुरंग की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही पहुंचे, जमीन इनके पैरों के नीचे लड़जने लगी और अचानक एक गहरा गड़ा खुल गया। जैसे ही जाल और मेहरू अंधेरे गड़े में उतरने के लिए तैयार हुए, ईजन पीछे हट गया। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, ईजन बोला। मैं तुम्हें यहाँ तक ले आया, मगर आगे जाना पागलपन है। मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। ये कहकर ईजन तेजी से पीछे मुड़ा और अंधेरे जंगल में भाग गया। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। अजीब नक्शो नगार और जादूगर के कहकों की गूंज सुनाई दे रही थी। दोनों सुरंग में आगे बढ़े। चंद ही कदम चलने के बाद वो एक कुशादा कमरे में दाखिल हुए।
जाल और मेहरू जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुए, उनकी नजरें सीधी दीवार के साथ रखे पुराने आईने पर जा ठहरी। दोनों ठटक गए, कदम रुक गए। मेहरू ने बेयकीनी से जवाल की तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, ये वही आईना है जाल, ये जहाँ कैसे आ गया? जाल ने भी हैरत से कहा, हाँ, ये वही जादुई आईना है, शायद जादूगर इसे जहाँ लाया है। जैसे ही वो आईने के बिल्कुल सामने पहुंचे, आईने की सतह पर धुंध हटने लगी और जैसे ही मंजर साफ हुआ, उन्हें अपनी बस्ती दिखाई दी। मेहरू ने लड़ती आवाज में कहा, जाज ये देखो, ये तो हमारी बस्ती है। जाल ने धीमी आवाज में कहा, शायद हमारी वापसी का रास्ता यहीं से होगा। मेहरू ने जाल की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, तो फिर देर किस बात की, हमें आगे बढ़ना होगा। दोनों सुरुम में आगे बढ़े। अचानक सामने 3 दरवाजे आए। हर दरवाजे पर एक जुमला लिखा था, सच की राह खतरनाक है मगर अंजाम कामयाबी है, झूठ की राह आसान है मगर अंजाम तबाही है, खामोश राह जहां वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। जाल ने कहा, यह इम्तिहान है, हमें सच की राह चुननी होगी। वो पहला दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। अंदर एक अंधेरा कमरा था जिसके बीचों बीच एक शीशे का संदूक रखा था और इसके चारों तरफ सांपों की दीवार बनाई गई थी। जाल ने आंखें बंद की और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ सांपों के बीच में दाखिल हो गया। सांपों ने हमला नहीं किया बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से हटने लगे। जाल ने संदूक खोला और अंदर से वो जादुई किताब निकाल दी जिसके सफ़ात सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। जैसे ही जाल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, दोनों बोनों की शक्लें बदलने लगी। चंद लम्हों में वो बोने दोबारा से इंसान बन गए। मेरू हैरत से बोली, ये कैसे हुआ? जाल ने किताब के औराक बंद करते हुए कहा, यही इस जादू की ताकत थी। लेकिन खुशी का वक्त ज्यादा देर ना रहा। अचानक जमीन जोर से लड़ने लगी। कल्ले की दीवारों से पत्थर टूटकर गिरने लगे और पूरे हाल में गूंजती हुई एक गहरी खौफनाक आवाज आई, तुमने मेरे राज से पर्दा उठा दिया। ये वो किताब है जिसके मंत्र सदियों तक कैद थे, जिसके अल्फाज मेरे अख्तियार में थे। तुमने मेरे जादू को तोड़ दिया, लेकिन याद रखो, हर जादू की एक कीमत होती है और तुम अभी उस कीमत से बेखबर हो। जाल और मेहरू दोनों जादूगर की आवाज सुनकर खौफजदा हो गए और तेजी से भागने लगे। दीवारें गिर रही थीं, जमीन लड़स रही थी, लेकिन इनके कदम रुके नहीं। वो सीधा उस जादुई आईने के पास पहुंचे। जैसे ही वो आईने के करीब हुए, आईना खुद बहुत रोशन हो गया और एक ताकतवर रोशनी उनकी तरफ बढ़ी। अचानक वो रोशनी दोनों को अपनी तरफ खींचने लगी और पलक झपकते ही दोनों आईना के अंदर गायब हो गए। जब जान और मेहरू आईने के अंदर दाखिल हुए, अचानक जमीन जोर से लड़ने लगी। पीछे पूरा महल टूटकर मिट्टी में मिलने लगा। जादूगर जिसने बरसों लोगों को कैद रखा था, अपने ही जादू के नीचे दबकर खत्म हो गया। वो जादुई आईना जिसने इनकी दुनिया को कैद कर रखा था, जाल और मेहरू के गुजरते ही टुकड़ों में बिखर गया। जो जादूगर भी मर चुका था और उसका काला जादू भी उसके साथ ही हमेशा के लिए खत्म हो गया था। दूसरी तरफ जब जाल और मेहरू आईने से निकले तो सामने अपनी बस्ती को आबाद देखकर उनकी खुशी की इंतहा न रही। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ बढ़ने लगे कि अचानक उन्हें आवाज सुनाई देने लगी। पूरा गांव उनकी तरफ आ रहा था। हर कोई खुश था, हर चेहरा इंसान था। अब कोई बोना न था। जादू खत्म हो चुका था। बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब उनके इर्द गिर्द जमा हो गए और नारे लगाने लगे। तभी हुजूम में से एक बुजुर्ग आगे बढ़ा और बुलंद आवाज में कहा, याद रखो, असल जादू मोहब्बत, हिम्मत और सच्चाई का होता है। जिस दिल में दूसरों के लिए खैर हो, वो सबसे बड़ा जादूगर होता है, और जो अपने खौफ पर काबू पा ले, वही अपनी तकदीर बदल सकता है। पूरा मजमा खामोश हो गया, जैसे ये अल्फाज सबके दिल में उतर गए हों।